کو آپ تک پہنچا سکوں. میری مسز کی طرف سے، میرے بچوں کی طرف سے آپ سب کو سلام قبول ہو. بائبل مقدس میں سے آج جو سچائی کا خلاصہ ہم سنیں گے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کئی بار آپ نے میسج سنا، کئی بار آپ نے کلام سنا ہے. آج جو خدا کا کلام میں آپ تک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو شہادت میں حاصل کروں گا، میں ایمان سے کہتا ہوں میں بھی برکت حاصل کروں گا اور آپ بھی برکت حاصل کریں گے. ہم نے خدا کے کلام کو صرف محدود مدت اور محدود حد تک قائم کر دیا. ایک ہی میڈیا کھول لیں، بہت بڑا کراؤڈ ہے، آپ بھی آئیں، دوسروں کو بلائیں تاکہ بیمار کیا کریں، شفا پائیں. یہی میڈیا کھول کے دیکھ لیں، اشتہار دیکھ لیں، یہی پڑھیں گے آپ. کوئی ایسی عبادت ہو، کوئی ایسا کراؤڈ جمع کیا ہو جس میں کہیں آؤ ہم خداوند یسوع مسیح کے نام سے برکت حاصل کریں. تو جب ایسا اشتہار پڑھتے ہیں تو پھر گاڑیوں کی تعداد گنی نہیں جاتی، ایسا لگتا ہے جب پورا پاکستان بیمار ہو گیا. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آج بائبل مقدس میں سے میں شفا نہیں بیان کروں گا. میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ محبت ہے. وہ کیا ہے؟ محبت. ہم جب چھوٹے تھے نا اپنے فیملی گھروں میں، تو بہن بھائی اکٹھے ہونا تو ماں باپ نے ایک بات کہنی، ہم نے کھانے سے کئی بار کہنا میں نے پہلے کھانا، میں نے پہلے کھانا. انہوں نے کہنا پتر کھاؤ ضرور پر ٹھنڈا کر کے کھاؤ، کھاؤ ضرور پر ٹھنڈا کر کے کھاؤ. کھانا ہم نے گرم کھانا شروع کر دیا، محبت ہم نے ٹھنڈی کر دی. جو چیز ٹھنڈی کرنی ہے نا وہ ٹھنڈی نہیں کی. محبت خدا نے بتائی کہ یہ قائم رکھو، وہ قائم نہیں، وہ ٹھنڈی کر دی ہے. آخری جنگ میں عقل افزون ہو جائے گی اور محبت کا خاتمہ ہو جائے گا. محبت بتھیروں کی کیا ہو جائے گی؟ ٹھنڈی پڑ جائے گی. بائبل مقدس میں سے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. لفظ محبت آج جو ہم سیکھیں گے یہ 4 لفظوں پر مشتمل ہے. بڑی قابل غور بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میم سے محبت ہوتی ہے. میم سے کیا ہوتی ہے؟ محبت. اور ہے سے کیا ہوتی ہے؟ حلیمی. اور بے سے کیا ہوتی ہے؟ برداشت. اور تے سے کیا ہوتا ہے؟ تحمل. یہ 4 چیزیں جس انسان کے اندر ہے، جس پاسٹر کے اندر ہے، جس فیملی کے اندر موجود ہے، اس کے اندر محبت ہے. جس کے پاس یہ 4 چیزیں نہیں، وہ محبت سے خالی ہے. نیور وہ جھوٹ بولتا ہے، نو، اس میں ہے نہیں محبت. یہ 4 لفظ جس کی زندگی میں نہیں ہے اس میں محبت نہیں ہے. اور ہم دکھانے کی محبت کرتے ہیں کئی بار، پہناوے کی محبت کرتے ہیں کئی بار. اب دکھاوے کی اور پہناوے کی محبت میں فرق ہے. کئی بار ہمارے سامنے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جنہوں کی ڈریسنگ بڑی اچھی ہوتی ہے، ہم یہاں سے کہتے ہیں آپ بڑے پیارے لگ رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ بڑے پیارے لگ رہے تھے کیوں ہے؟ یہ پہناوے کی محبت ہے. خدا پہناوے کی اور دکھاوے کی محبت قائم نہیں رکھتا، اور نہ ہماری زندگی میں یہ ہونے چاہیے. بلکہ خدا کی کلام لکھا بے ریائی کی محبت سے بھاگو. اگر محبت کرنی ہے تو بے ریائی کی محبت کو چھوڑ دو. ریاکاری کی محبت نہ کرو، دکھاوے کی محبت نہ کرو. اور بائبل مقدس میں سے مقدس یوحنا کرنتھیوں کا خط پولس رسول کے نام، پہلا کرنتھیوں تیرہواں باب اس کی پہلی آیت. پولس رسول کا خط ہے کرنتھیوں کے نام، 13واں باب اس کی پہلی آیت. اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں
और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठन ठनाता पीतल और झंझनाती जांच हूं। अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों की कुल इल्म की वाफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को कहूँ हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर मैं पहाड़ों को कहूँ मैं हटा दूं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। खुदा उनका कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना हम सबको क्या करे, बरकत बख्शे। आज की जो मरकज़ी आयत है कि हमने क्या करनी है, मोहब्बत रखनी है। फिर बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम हमें सिखाता है बड़ा खूबसूरत, अगर मैं अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं, मुझे कुछ भी फायदा। और फिर मोहब्बत क्या है, साबर, मोहब्बत मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, मोहब्बत फूलती नहीं, नाज़ेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है। किससे खुश होती है जी? रास्ती से खुश होती है, रास्ती से खुश होती है, रास्ती से, रास्तबाजी से, रास्ती से नहीं। खुदा रास्ती से मोहब्बत करता है, रास्तबाजी से मोहब्बत करता है। क्या है? रास्ती से मोहब्बत करता है नहीं, खुदा रास्ती से मोहब्बत करता है। और फिर खुदा इतनी मोहब्बत भी करता है, वो लेखों और पदों से भी मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत और हमारी मोहब्बत में क्या है, फर्क है। उसका सूरज जब चमकता है तो किन पर चमकता है, नेकों और बदों दोनों पर चमकता है। कि पादरियां दे घरां च चमकदा, साथ रहिएगा मेरे। पादरियां दे घरां च सूरज चढ़े ते नालदियां दे घरां च कदी कदी वेख्या विछाड़ होया होवे। बारिश पादरियां दे घरां च पवे ते नाल दे घरां च बारिश न यकसा। जब खुदा की रहमत बरसती है तो यकसा हर जगह पर बरसती है। खुदावंद न शुक्रों पर, निरास्तों पर, गुनाहगारों पर अपनी कुदरत को जाहिर करता है, मेहरबान है वो। अगर वो सिर्फ दिखावे की आप मोहब्बत करे या अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखे तो फिर वो खुदा नहीं है, फिर वो खुदा नहीं है, वो बशर है। तो हम किसी बशर की इबादत नहीं करते, हम उस जिंदा खुदा यीशु मसीह की इबादत करते हैं जिसने सबके लिए सलीब उठाई है और जान देने तक वफादारी दिखाई। और उसने फरमाया तुम भी जान देने तक क्या रहो, वफादार रहो। अगर मैंने जान दी है तो तुम भी जान दो और जान देने तक वफादार रहो। साढ़े तो को 200 रुपया मांग ले, वो नहीं देते, एडी जी साढ़े च मोहब्बत। तुम जान देने तक वफादार रहो। हमारे पास हाजतमंद जरूरतमंद आ जाए तो हम ना इसी तरह आते आप उठे बैठे। ये मोहब्बत नहीं खुदा चाहता। खुदा चाहता अगर आपके पास कोई जरूरतमंद हाजतमंद आ गया है तो उसे ये न कहे कल लाना, बल्कि जो कुछ तेरे पास है उसके लिए वक़्फ़ कर दे और ये भी उम्मीद ना रख तू मुझे कब वापस करेगा। ये मेरे और आपके आका की मोहब्बत है। कलाम मुक़द्दस खुदा का कलाम हमें ये खूबसूरत सिखाता है। सातवीं आयत में लिखा है सब कुछ सह लेती है क्या मोहब्बत, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त, सब बातों की बर्दाश्त करती है। ये मोहब्बत है और मोहब्बत खुदा है। मोहब्बत क्या है, खुदा है। मोहब्बत खुदा नहीं है, खुदा मोहब्बत है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना एक कलौता बेटा
बख्श दिया, साथ रहिएगा, इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। यह है मेरे और आपके खुदा की मोहब्बत। और कलाम मुकद्दस खुदा का कलाम जो हमें सिखाता है। और फिर खुदा के कलाम में मुकद्दस लूका का 6 बाब उसकी 27वीं आयत, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी की अंजील 27वां बाब 6 बाब उसकी 27वीं आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं अपने दुश्मनों से नफरत रखो, अपने दुश्मनों से। हालेलुया। खुदा यीशु के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखते हैं उनका भला करो, जो तुम पर लानत करते हैं उनके लिए बरकत चाहो। यह है मेरे यीशु की तालीम, यह है आपके आका की और मेरे आका की, आपके खुदा यीशु मसीह की तालीम और मेरे खुदा यीशु मसीह की तालीम यह है। अगर हम इस तालीम को फॉलो करते हैं, इस बात को फॉलो करते हैं, तो यकीनन हम खुदावंद यीशु मसीह के बेटे भी हैं और बेटियां भी। कोई दुनिया की ताकत हमको मसीह की मोहब्बत से रोक नहीं सकती, उससे जुदा नहीं करती। जब ये चीजें हमारे अंदर आ जाएंगी, जब ये खुदा का कलाम हमारे अंदर सरायत करेगा, तो फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं है, कोई इब्लीसी स्पिरिट नहीं है जो हमें रोक सके कि हम खुदावंद के पास ना जाएं। और बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम हमें खूबसूरती से बयान करता है। बत्तीसवीं आयत, इसी बाब की 32वीं आयत, अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा आसान क्या है। अगर तुम अपने ही मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखो तो आसान क्या है। केड़ा मार का मार लिया, कौन सा बड़ा काम है जो तुमने कर लिया है। अगर अपने मोहब्बत रखने वालों से तुम मोहब्बत करते हो, क्योंकि गुनाहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। अगर तुम उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करते हैं, तो तुम्हारा क्या आसान है। गुनाहगार भी गुनाहगारों से क्या करते हैं, मोहब्बत रखते हैं। कभी शराबियां नूं वेख्या होवे, जिन्हें कभी वेख्या दसो मैनूं। पोडरियां नूं कभी वेख्या होवे, इंजेक्शन लगाने वालों को एक ही सुई नाल 10-10 जाने परोए जाते हैं। उनकी मोहब्बत देखो, एक ही ड्रिंक एक ही गिलास उठाते हैं, सब टक टक करके ते आ गया। मैंने देखा, मैंने इन महफिलों को अटेंड किया, मैं इन लोगों के पास गया हूं। इनकी मोहब्बत देखो, गुनाहगार भी तो ऐसे करते हैं, उनकी मोहब्बत देखो कितनी है। सुई एक, इंजेक्शन एक, गिलास एक, ते शराब की बोतल भी एक। बड़ी काबिल और बात है, गल ज़रा खतरनाक है। हमारी मोहब्बत क्या है। मैं एक जगह पर मैसेज दे रहा था, मैंने कहते पाज साहब तुसी कलाम बड़ा हिट करके सुनाया। मैं कही क्यों, कहते जी खुदा मोहब्बत है। मैं क्या होर कोई गल कर मेरे वीर, मेरे नाल और कोई बात कर मेरे साथ। मैंने कहा मैंने खुदा के कलाम को हिट किया, जो बात लिखी मैं वो ही मैंने बयान किया बाइबल मुकद्दस में। कौन सा मैंने कलाम हिट किया है। कहने लगा जी खुदा तो मोहब्बत है। मैं क्या, ना मैंने पास्टरों में ना मैंने बाबू में ये देखा है। मैं क्या साढ़े नालों पधरूआ चंगियां, एक जाती है तो 7 ते असीं 10 सुने तो किन्ने रहने हैं, सिर्फ 2। 10 सुने तो 8 हो गए तो 2 बाकी रह गए। ऐ मोहब्बत साड़ी। जिस किसी ने कह दिया मिनिस्ट्री बड़ी चंगी जे, बड़ा ऑनर दे रही जे,
अच्छा साढ़ा पारी तो सौंदे कुछ नहीं लिया। ऐसा होता कि नहीं, साथ रहिएगा मेरे, ऐसा होता कि नहीं होता भाई? खुदा के खादमों ऐसा होता कि नहीं होता? खादम की खिदमत उन्होंने देखना, हमने डॉलर को देखना, हमने रुपए को देखना, पैसे को देखना है। खादम की खिदमत गई जहां पर है, उन्हें साढ़ा पारी तो सौंद देता कुछ नहीं। भाई अपने माइंड में ये बात सोचें, आपके खादम ने आपको क्या नहीं दिया। अपने चरस से अपने खादमों से फरमाबरदारी करें, वफादारी करें। जब आप अपने चरस से वफादार नहीं, अपने पास्टर से वफादार नहीं है, तो फिर खुदा से कैसे वफादार रहेंगे आप? अपनी चर्च के साथ वफादारी अपनाएं। जो रात दिन खुदा के खादम तुम्हारे लिए जाग जाग के घुटने टेक टेक के दुआ करते हैं, उन्हें भी याद रखो, अपने अच्छे कामों में याद रखो। खुदा का कलाम हमें खूबसूरत सिखाता है, अगर तुम उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करते तो तुम्हारा क्या आसान है, क्योंकि गुनहगार भी ऐसा ही करते हैं। अगर तुम उन्हीं को कर्ज दो जिनसे वसूल करने की उम्मीद रखते हो तो तुम्हारा क्या आसान है। गुनहगार भी गुनहगारों को कर्ज देते हैं ताकि पूरा वसूल करें, मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो, बगैर नाउमीदी कर्ज दो, तुम्हारा बड़ा अजर होगा। हालेलुया, तुम्हारा क्या होगा? बड़ा अजर होगा। तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे, क्योंकि वो नशुक्रों और बदों पर भी मेहरबान है। वो नशुक्रों और बदों पर भी क्या है? मेहरबान है। हमने ऐसी मोहब्बत करनी है, अपने ऐसी मोहब्बत अपने अंदर पैदा करें। मैं क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूँ। बाइबल मुक़द्दस में से जितना मुझे वक्त दिया गया है, कोशिश करता हूँ कि उतने वक्त में मैं खुदा के कलाम को आप तक पहुँचाऊँ। मुक़द्दस यूहन्ना का खत, पहला आम खत, दूसरा बाब, पहली आयत। ऐ बच्चों, ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए लिखी कि तुम गुनाह ना करो। अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास तुम्हारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। वो ही हमारे गुनाहों का कफारा है, ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करें तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है मुझसे जान गया हूँ और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। अगर वो कहता है कि मैं जान गया हूँ खुदा के हुक्मों को, अगर उसमें ये चीज़ नहीं पाई जाती तो वो क्या है? झूठा है। अगर उसके अंदर मोहब्बत है ही नहीं तो वो क्या है? झूठा है। अब दूसरी आयत जो मैं बयान करना चाहता हूँ बाइबल मुक़द्दस में, मुक़द्दस यूहन्ना का पहला आम खत, दूसरा बाब, उसकी 7वीं आयत। ऐ बच्चों, मैं तुम्हें कोई नया हुक्म नहीं लिखता, बल्कि वही पुराना हुक्म जो शुरू से तुम्हें मिला है। ये पुराना हुक्म वही है, वही कलाम है जो तुमने सुना। फिर तुम्हें एक नया हुक्म लिखता हूँ। ये बात उस पर और तुम पर सादक आती है, क्योंकि तरीकी मिटती जाती है और हकीकी नूर चमकना शुरू हो गया है। जो कोई ये कहता है मैं नूर में हूँ और अपने भाई से अदावत रखता है, वो अभी तक तरीकी में है। जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में रहता है और ठोकर खाने का नहीं। आज का अमली मैसेज यही है। अगर कोई कहता है कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ, तो फिर अपने भाइयों से मोहब्बत रखनी शुरू करो। अपनी फैमिली से रिलेशनशिप दूर ना करो। बहू अपनी सास से मोहब्बत करे, सास अपनी बहू से, ससुर अपने दामादों से, बहुओं से मोहब्बत करे। और बेटे हैं तो माँ बाप के फरमाबरदार रहें, बहन भाई हैं तो एक दूसरे की फरमाबरदारी और वफादारी करें, हर एक रिश्ते की पासदारी करें। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर खुदावंद की मोहब्बत है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे अंदर कोई भी खुदावंद की मोहब्बत नहीं है। हम अभी तक तारीकी में हैं, अभी तक अंधेरे में चल रहे हैं। अगर
محبت ہے تو پھر تاریخی ہم سے دور ہو جائے گی، اور خدا کے کلام میں لکھا حقیقی نور چمکنا شروع ہو گیا ہے۔ اب حقیقی نور چمکنا شروع ہو گیا ہے، تم تاریخی کے نہیں ہو بلکہ روشنی کے فرزند ہو۔ آج کا عملی میسج یہی ہے، خدا کا کلام پڑھا جانا، سنا جانا، سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔